आज आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद रणवीर सिंह उर्फ जीतू सिंह के नेतृत्व में आज 41 नंबर वार्ड में नशा विरोधी एक रैली निकाली गई। इस रैली में आसनसोल नगर निगम के मेयर, विधान उपाध्याय, पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष सैयद अफरोज, 84 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद देवाशीष सरकार, टीएमसी नेता शाहिद, तमाम टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक गण उपस्थित थे। रणवीर सिंह के नेतृत्व में सभी आमंत्रित अतिथियों का फूलों का गुलदस्ता देकर और बैज पहनाकर स्वागत किया गया। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में नशा विरोधी तख्तियां थाम रखी थी। रैली ने पूरे 41 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और लोगों को नशे की बुरी आदत के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को तबाह कर देता है। यही वजह है कि सबको और खास करके नई पीढ़ी को नशे से दूर रहने की आवश्यकता है। वहीं 41 नंबर वार्ड के पार्षद रणवीर सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय से 41 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों में नशा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आई थी। जब से वे पार्षद बने हैं, उन्होंने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। वे चाहते हैं कि इलाके के किसी भी घर में नशे की वजह से कोई अशांति ना हो। यही वजह है कि आज उन्होंने ये नशा विरोधी अभियान छेड़ा। आज के कार्यक्रम के दौरान रणवीर सिंह ने विधान उपाध्याय से 41 नंबर वार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चा की और उनके जल्द से जल्द निराकरण की अपील की। मेयर ने भी काउंसलर के साथ साथ इस वार्ड के सभी लोगों को आश्वस्त किया कि वे इस वार्ड की तमाम समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे और उनके कार्यालय के साथ साथ उनके दिल के दरवाजे भी इस वार्ड के लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। जगह बनाने होगा। आसानसोल कॉर्पोरेशन বা আসানসোল বিধানসভার নই প্রার্থী আমি ছিলাম না, মানে বিধানসভাতে আমি দাঁড়াইনি, এখানে মর্যাদা প্রার্থী আমি পাশের বিধানসভা বারাবণী বিধানসভা থেকে আমি নির্বাচিত, যে কারণে আমার এখানে আসা হয়নি। ফার্স্টবার এলাম। আমি জিতুদার এই অনুষ্ঠানে এসেছি। আমার সাথে ডাক্তারবাবু আছেন, দেবাশিস সরকার কাউন্সিলর, আমাদের প্রেসিডেন্ট আফরোজ ভাই আছে এবং আপনারা সকলে আছেন, দিদি আছেন, দাদারা আছেন, অভিনব আছে, সবাই আছে। সকলকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন রইল। সত্যিকারের মানে আমাদের উচিত, আমরা যেহেতু মানুষ এবং আমরাও সমাজে বাস করি, যারা পিছিয়ে পড়েছে, যারা একদম পিছনের দিকে আছে, যাদের অসুবিধা আছে, আমাদের তাদের জন্য দাঁড়ানো দরকার। এমনি বর্তমান সরকার সব সময় রয়েছে সরকারের যে কোনো প্রকল্প, যা সরকারের প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পগুলো প্রায় প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি পরিবার পাচ্ছে। কিন্তু এখানে যে অসুবিধাগুলো আছে, আমাকে করে জিতুদা যেটা বললো, যেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেরকম পরিষেবা নেই বা এখানে হাই মার্কস লাইট নেই, জলের অসুবিধা আছে। নিশ্চিতভাবে আমরা আগামী দিনে যাতে এই অঞ্চলে এই গরিব মানুষগুলোর জন্য আমরা যদি কিছু করতে পারি, নিশ্চিতভাবে আমরা পাশে দাঁড়াবো। তো জিতুদার সাথে থাকুন এবং আমরা সব সময় চাইবো। আমি অলরেডি জিতুদাকে বলেছি যে কিছু প্রপোজাল এইখানকার জন্য কিছু প্রপোজাল আমাদেরকে দিলে আমরা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে সেগুলো বোর্ডে পাস করিয়ে আমরা সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো। তো আমরা এই এলাকার জন্য আছি, যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের দরকার পড়বে। আমরা কর্পোরেশনে জানেন প্রতিদিন 11টা থেকে আমরা ওখানে বসছি। তো আমরা আছি যে কোনো দরকারে, কোনো নেতা নেত্রীকে দিয়ে নয় যে আমাকে কোনো নেতা ধরে নিয়ে যেতে হবে। আমাকে হয়তো আপনারা চিনেন না, আমার সাথে কিছুদিন যোগাযোগ করলে বুঝতে পারবেন জায়গাটা। আমার কাছে নেতা নেত্রীর দোয়ার চেয়েও যদি ডাইরেক্ট নিজে পৌঁছাতে পারেন, সবচেয়ে বেশি উপকার করে। তো সবাইকে বলবো সাথে থাকুন, পাশে থাকুন আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে, কারণ এলাকাটা যেহেতু আমি নিজেও দেখছি, আমাকে সেদিন বলেছিল, রিকোয়েস্ট করার পর আমি নিজে বলেছিলাম যে আসবো, এসে দেখি আমরা আপনাদের পাশে রয়েছি। তৃণমূল কংগ্রেস আপনার পাশে রয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের পাশে আছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের পাশে আছে। নিশ্চিতভাবে আপনাদের উন্নয়ন আরও উন্নয়ন হবে। ধন্যবাদ, নমস্কার। আর জিতুদাকে বলবো সব সময় আমাদের কর্পোরেশনের রেল
জিতুদা নিজেও কাউন্সিলর যেহেতু, তো আমরা সবাই মিলে একসাথে যারা আমরা কাউন্সিলর আছি, আমরা যারা দায়িত্বে পেয়েছি আসানসোল কর্পোরেশন, আমরা চাইবো আসানসোলকে সুন্দর করার, সাজানো, কিন্তু সেগুলো কিন্তু মানুষকেও সচেতন থাকতে হবে। কারণ গভর্নমেন্ট কর্পোরেশন কাজ করলো, কর্পোরেশন কাজ করার পর সেগুলো যদি ঠিকমতো রাখতে হবে, মানুষকে, সমাজকে রাখতে হবে, তাই সমাজের দায়িত্বটাও কিন্তু বর্তায়। তাই ধন্যবাদ, নমস্কার, সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ। এই যে এখানে 40টা ঘর আপনাকে দেখাবো, কবে যে পড়ে যাবে কেউ জানে না। আপনি এটা বলবেন না কি জিতু সিং তুমি আমাকে आगे बोलोनी, আপনাকে নিয়ে যে এখন দেখাবো আপনি कि इंसानियत जो है यहीं पर मर जाती है। हम इंसान कहने लायक नहीं है जब हमारे सामने इंसानियत मर जाती है। মানুষ এমনও এখানে আছে যারা বলে লোকে তো আমি ভালো করবো না, যে খারাপ করবো না তার জন্য কি দেবে, ওই জিনিসটা আপনি সরিয়ে দেন, ওই জিনিসটা সরিয়ে দেন। কারণ আপনাকে লোক, গ্রামের লোক এখানে আমরা পেয়েছি, গ্রাম থেকে আমাদের সবজি আসে, সব আসে। যখন আমরা বাজারে সবজি যাই, বলে এটা কি গ্রামের পুকুরের মাছ, এটা কি গ্রামের সবজি। আমরা আজকে আমি তো নিজের ভাইপোকে আসছিলাম, কমেন্টটা নিব না আপনাকে। জল একদম পড়ছে না, ড্রেনের উপরে জল আছে, ওয়াটার বাড়িগুলো ঠিক নেই, রাস্তাঘাট নেই, কিচ্ছু নেই। এগুলো আমি দেখে গেলাম, আমরা নিশ্চিতভাবে কর্পোরেশন সহযোগিতায় থাকবো। আপনাকে তো এখানকার যে কাউন্সিলর উনি, হ্যাঁ জিতুদা, উনি ঘুরে দেখালেন, তো কি মানে উনি অ্যাকচুয়ালি কি প্রবলেম আপনাকে বললেন? ওই তো বললাম, রাস্তা নেই, জল নেই, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, মানে এখানে যারা থাকে তারা পুরো আসানসোলকে পরিষ্কার করছে, নিজেদের বাড়িতে মানে পরিষ্কার নেই। সেটাকে দেখতে হবে আমাদের, কারণ সমাজটা পুরোটার উন্নতি চাই। এর আগে তো আসানসোল কর্পোরেশনে এর আগে ক্ষমতায় ছিল জানি না, আমি দেখে গেলাম। আমি নিজে যেহেতু গ্রামে থাকি, গ্রামে বাস করি, গ্রামটা সম্পর্কে জানি, তো আমি নিশ্চিতভাবে চাইবো যে আমার দ্বারা যতটা উপকার করা যাবে তার চেয়েও বেশি উপকার। आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव संपन्न हुए। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 1074 मतदाताओं ने कुल 23 पदों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन चुनाव में रानीगंज व्यवसाय कमेटी आरबीसी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच टक्कर हुई। इस संदर्भ में आरबीसी के सदस्य रोहित खेतान ने कहा कि चुनाव काफी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहे हैं और उनके उम्मीद है कि आरबीसी के पिछले कार्यकाल को देखते हुए मतदाता गण इस बार भी आरबीसी के सदस्यों को ही पुनः चुनेंगे। वहीं आरबीसी के एक और सदस्य प्रदीप बजोरिया ने भी चुनाव प्रक्रिया पर अपना संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आरबीसी द्वारा पिछले कार्यकाल में जिस तरह से विकास के कार्य को अंजाम दिया गया था, उसे देखते हुए उनको पूरा विश्वास है कि इस बार भी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य आरबीसी के पक्ष में ही मतदान करेंगे। हालांकि इन चुनाव में प्रतिद्वंदिता कर रहे एक निर्दलीय उम्मीदवार ने कहा कि हर संस्था में विपक्ष का होना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि आज वे इन चुनाव में शिरकत कर रहे हैं। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2022-24 के लिए आज 6 मार्च को चुनाव हो रहा है। चुनाव सुबह 10 बजे शुरू हो गया है। चुनाव खूब सुंदर और खूब शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है। सभी वोटर आकर अपना वोट दे रहे हैं। कुल हमारे 1074 एलिजिबल वोटर हैं, वो आज अपनी वोट यहाँ पर चैम्बर में देंगे। इसमें 2 टीम ने हिस्सा लिया है। एक आरबीसी की टीम है, उसमें 23 सदस्य हैं और एक टीम में 6 सदस्य हैं। एक आरबीसी की टीम है रानीगंज व्यवसाय कम्युनिटी, उसमें 23 सदस्य हैं और एक टीम में 6 सदस्य हैं और एक निर्दलीय प्रार्थी राकेश मिश्रा है। क्या लगता है? चुनाव अभी तो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, अभी कुछ नहीं बोला जा सकता। कल काउंटिंग के बाद ही कोई प्रतिक्रिया होगी। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप बाजोरिया, प्रेसिडेंट रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अभी 180 वोट हुआ, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। शांतिपूर्वक चल रहा क्या उम्मीद रख रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि रानीगंज वासी यदि चैम्बर में भी अपोजिशन चाहते हैं, ये वोट जो हो रहा है ये वोट होना ही नहीं चाहिए। कुछ एक लोगों के एरोगेंसी के कारण ये वोट हो रहा है।
तो ये वोट होने का कोई मतलब नहीं है, एक टीम ऑलरेडी। वोट नहीं होने का कोई मतलब नहीं, ये थॉट आपका आ रही है, हम क्या सोच के आ रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि 16 आदमी, ये 23 आदमी हम लोग खड़े हुए हैं, कैंडिडेट है, उसमें से 16 आदमी यदि जीत करके एक पार्टी का आ जा रहा है तो फिर वोट करवाने का तो कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंट इसलिए खड़े हुए हैं कि कोई भी संस्था में यदि अपोजिशन नहीं रहे तो वो संस्था स्मूथ वे में चल नहीं सकती। तो हम लोग संस्था में अपोजिशन रहे और स्वस्थ अपोजिशन रहे। आरबीसी के लिए क्या वक्तव्य रख रहे हैं? आरबीसी ये जो अभी जो है कंटिन्यू कमेटी है और आरबीसी के जो सदस्य हैं अभी कंटिन्यू कमेटी के ही मेंबर्स हैं वहाँ पे, और वो लोग चाहते हैं कि एक भी अपोजिशन का आदमी हम लोग के विरुद्ध में नहीं रहे। इस चीज़ का हम लोगों ने प्रतिवाद किया और हम लोग 6 आदमी इस चीज़ के विरुद्ध में खड़े हैं। आपका नाम, आपके कैंडिडेट? संजय कुमार डालमिया नाम है, 24 नंबर मेरा सीरियल है। हर संस्था में अपोजिशन होना चाहिए, मोनोपोली और डिक्टेटरशिप कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, इसके प्रतिवाद में खड़े हैं। कुल 30 उम्मीदवार हैं जिसमें से 23 चुने जाने हैं। पूर्ण तरह से शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। ये चैम्बर का आंतरिक चुनाव है, इसलिए किसी तरह की हम लोगों को अशांति की कोई आशंका भी नहीं है। बहुत शांति से और परस्पर प्रेम और सौहार्द से ये इलेक्शन चल रहा है। सर कितना % वोट अभी तक मतलब? अभी तक शायद 200 वोट हुए हैं, कुल 1050 के आसपास वोट हैं। हम लोग आशा करते हैं कि 700 से 800 के बीच में कुल वोट पड़ने चाहिए। आरबीसी की क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, आरबीसी का ये हम लोग सकारात्मक चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी हम लोगों की टीम थी और हम लोग एक बहुत पॉजिटिव नोट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हम लोगों ने जो काम किया है उसके बल पे ही हमारे जो व्यावसायिक समाज के मेंबर्स हैं वो हमें लेके आएंगे, ऐसा हमें भरोसा ही नहीं विश्वास है। और चैम्बर टीम तो हमारी वैसे भी 23 में से हमारे 23 कैंडिडेट हैं, सामने 7 कैंडिडेट हैं, टीम तो आनी तय है। अब बस ये देखना है कि हम लोगों के काम के बल पर मेंबर हम लोगों में कितना भरोसा जताते हैं, उसी का इंतज़ार है। आपका नाम एवं आपके? मैं रोहित खेतान, मैं स्वयं एक उम्मीदवार हूं और हमारी ये जितने हैं सब हमारी टीम आरबीसी के सदस्य हैं और हम लोग आशा करते हैं कि मेंबर्स हम लोगों के पॉजिटिव वर्क पे, हम लोग के सकारात्मक और अच्छे काम पे हम लोगों को पुनः अच्छे वोट से लेके आएंगे। आइडिया नहीं है भाई मेरे को कितना % हो चुका है। 160-65 वोट हुआ है, मतलब खड़े हुए हैं, हाँ। क्या प्रभाव लग रहा है? प्रभाव बहुत बढ़िया है, जो भी भाई बंधु मिल रहे हैं सबको लग रहा है कि मेरे जीतने की संभावना काफ़ी अच्छी है। सारे कैंडिडेट ही बेहतर है। अब ये सदस्यों के ऊपर है कि किसको चुन के लेके आए। आरबीसी के लिए क्या वक्तव्य रखने का? आरबीसी की टीम अभी रूलिंग पार्टी में है, उनका भी परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। जो अपोजिशन है उसमें भी सारे बढ़िया है। ये 30 के 30 कैंडिडेट अति उत्तम है। खाली विचार का फर्क होता है कि किस काम को किस ढंग से करना आवश्यक है, उसमें थोड़ी सी निपुणता लाने की दरकार है। 6 सदस्यों की इंडिपेंडेंट टीम खड़े हुए हैं, कितना मतलब ये रख सकते हैं, आपको क्या लगता है? सारे के सारे ही आ जाएंगे। एक प्रॉपर सरकार में प्रॉपर अपोजिशन होना, साउंड अपोजिशन होना बहुत आवश्यक है। क्या नाम है आपका? नाम? राकेश मिश्र, 18 नंबर है मेरा सीरियल नंबर। आप दोनों से भी निवेदन है, वोट हो तो जरूर डालिएगा। धन्यवाद। समाज सेवी इम्तियाज खान आज संवाददाताओं से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि 7 मार्च से शुरू होने वाले बीपीएल प्रीमियर लीग का आयोजन पायल पीस फाउंडेशन की तरफ से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे कि सबको पता है कि पायल पीस फाउंडेशन हमेशा सामाजिक कार्यों में जुड़ी रहती है, इस वजह से इस प्रतियोगिता के जरिए भी कुछ सामाजिक कार्य करना चाहती है। इसको देखते हुए उन्होंने इच्छुक संस्थाओं और लोगों से अपील की कि अगर वे चाहे तो पायल पीस फाउंडेशन को डोनेशन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग बुजुर्गों की भलाई, पशु पक्षियों की देखरेख सहित अन्य सामाजिक कार्यों में किया जाएगा। इसके साथ ही इम्तियाज खान ने बताया कि 13 मार्च को होने वाले फाइनल मैच के दौरान जब संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, उनको बुलाकर यह राशि प्रदान की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं 7 मार्च को बीपीएल प्रीमियर लीग सानी स्टार मैदान में होने जा रहा है और इस गेम में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है और ये सानी स्टार मैदान में खेला जाएगा कल 7 तारीख सुबह 10 बजे से। जैसे कि 2 गेम, कल के दिन 2 गेम है, उसके बाद ऐसे कंटिन्यू चलेगा और 13 तारीख संडे के दिन ये फाइनल होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि ये पायल मल्टी प्लाजा के बैनर पे ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हमने सोचा कि कुछ इसमें भी कुछ सोशल काम किया जाए।
तो हम लोगों ने सोचा कि कल से यानी कि 7 तारीख से जो भी खेला होगा उसमें पायल फिश फाउंडेशन पहली बार सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप पायल फिश फाउंडेशन में डोनेशन दें। बहुत लोग फेसबुक लिखते हैं कि कभी कुछ प्रोग्राम होगा तो आप मुझे बोलिएगा, हम डोनेशन देंगे। तो ये वक्त आ गया है कि आप पायल को कुछ डोनेट करें। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि पायल को जो डोनेट करिएगा तो वो पायल उस पैसे के क्या करेगी। पहले हम लोग वृद्धा के लिए आपसे डोनेशन मांगेंगे, फिर हम लोग विकलांग जो है उसके लिए मांगेंगे, फिर हम लोग जो अनाथ आश्रम है उसके लिए मांगेंगे, जो एनिमल्स एनजीओ देखते हैं मैं उनके लिए मांगूंगा। और जो पैसा आपका 1-1 रुपया जो दिया जाएगा वो हम लोग फेसबुक पे अपलोड भी करेंगे माय नेम। और वो पैसे सिर्फ 13 तारीख संडे के दिन जो मैच फाइनल होगा उसमें हम लोग आपको उसी संस्था को बुला करके, ये लोकल संस्था होगी बनपुर की, आसनसोल की, कहीं कहीं जो अच्छा काम कर रही है, मैं उसको बुला करके आपके सामने मीडिया के सामने मैं उसको वो राशि सौंप दूंगा। तो क्या बानपुर ये बनपुर यही साउथ विधानसभा का टीम है, क्योंकि यहाँ के लोकल लड़का लोग है जिन्हें मौका नहीं मिलता है बाहर खेलने का, तो उसको मैंने एक मौका देकर के उनका टैलेंट चेक करना चाहता हूँ। जो फाइनल खेला जो होगा 7 डेज के बाद, तो वो क्या नाइट खेला होगा ना? नहीं, डे खेला होगा। विनर और रनर वो अभी हम लोग कमेटी डिसीजन करेगी उसके बाद। तो सोचा है मैं डोनेशन देखता हूँ क्या आता है, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। ये लगातार जो 7 दिन से टूर्नामेंट चलेंगे, इसमें अगर कोई टैलेंट प्लेयर्स निकलते हैं तो उसके लिए कुछ आप लोग सोच रखे? उसके लिए सोचेंगे, उनका अगर एज है, अगर उनके लिए एज है और उसमें अच्छा खेल रहे हैं, एज कम है, तो मैं उनसे बात करूंगा कि अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना है, ड्यूज खेलना है, कोई क्लब में आपको ज्वाइनिंग कराना है, तो उसमें हम लोग एनजीओ जरूर मदद करें। जैसे कि आपका भी क्रिकेट टीम है पायल मल्टीप्लाजा, क्या वो भी भाग ले रहे हैं? नहीं, मैं इस बार हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग अपना होम टीम नहीं रखें। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड के टीएमसी से पार्षद मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने आज एलिज फिटनेस नामक एक नए जिम का उद्घाटन किया। एमएन घोष रोड पर बने इस जिम का उद्घाटन मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने केक काटकर किया। इस मौके पर प्रख्यात बॉडी बिल्डर अरिंदम दत्ता विशेष रूप से उपस्थित थे। अरिंदम दत्ता भारत के एक प्रख्यात बॉडी बिल्डर हैं, जिन्होंने बंगाल के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर कई मेडल जीते हैं। रेलवे की तरफ से आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने अव्वल प्रदर्शन किया है। इनके अलावा नाइब खान समाज सेवी एसके जाकिर सहित स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद थे। जिम के उद्घाटन के अवसर पर अरिंदम दत्ता ने युवाओं को सही खान पान और भोजन के बारे में जानकारी दी और बताया कि सही खान पान और भोजन से ही इन दिनों पूरे विश्व में फैल रही तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर कामरान खान ने कहा कि दुनिया में फिटनेस से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती है। इंसान का जिस्म तंदुरुस्त रहेगा तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस जिम में आने वाले युवाओं को सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं बल्कि सामरिक रूप से किस तरह से फिट रहा जाए, इस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इतने कम कीमत पर इस जिम में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी वे और कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, हमारे वार्ड में पहली बार एक जिम खुला है, एलिट फिटनेस, एक कामरान खान खुला है। इससे समाज के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये फिटनेस जो बॉडी बनाता है, कोई भी इंसान, लड़का नौजवान, वो कुछ वक्त निकाल कर अगर ये जिम में कुछ समय दे दे फिटनेस के लिए तो एक अच्छा फिगर तैयार होता है और समाज के लिए ये अच्छा काम है। देखा जाए नशा का बहुत ज़्यादा फिगर बढ़, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ये जो खुला है जिम, इससे नशा का बहुत सा असर कम होगा। कुछ लड़का लोग इसमें ज़्यादातर आएंगे फिटनेस के लिए तो नशा का तरफ ध्यान नहीं जाएगा, बॉडी के ऊपर ध्यान जाएगा कि हमको बॉडी बनाना है, अपना लाइफ को सुधारना है। ये बहुत अच्छा चीज़ है और ये हमारे इलाके में हुआ है, हमारे वार्ड में। ये हमारा बहुत बड़ी बात है कि लड़का ने महसूस किया, ये खुद ट्रेनर है। এটা একটা লাইফস্টাইল, এটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে যদি আপনি হেলদি থাকতে চান। আপনি প্র্যাকটিস ছাড়া কোনোভাবেই আপনি হেলদি থাকতে পারবেন না। যত হেলদি খাবারই খান না কেন, আলটিমেটলি আপনাকে
প্র্যাকটিস করতেই হবে, এক্সারসাইজ ইজ মাস্ট। এটাই সবসময় মাথায় রাখবেন যে লাইফস্টাইলটাকে মেনটেন করতে গেলে এই প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো উপায় নেই আপনার। ডিপ্রেশন থেকে সমস্ত কিছুর জন্য যদি বলেন আজকের দুনিয়াতে ডিপ্রেশন একটা বড় ফ্যাক্টর, এটা থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র রাস্তা হচ্ছে এই প্র্যাকটিস, এক্সারসাইজ। আচ্ছা, নিউট্রিশন ডেফিনেটলি আপনারা চেষ্টা করবেন যতটুকু সম্ভব ন্যাচারাল ফুড খেতে, ন্যাচারাল সোর্স অফ প্রোটিন, কার্বস, হেলদি ফ্যাট এগুলোই খাবেন। যতটুকু সম্ভব তেল মানে অয়েলি জিনিস এবং সিম্পল সুগার যেগুলো মিষ্টি, যেগুলো মুখে দিলে ইনস্ট্যান্ট মিষ্টি লাগে, এগুলো যতটুকু সম্ভব অ্যাভয়েড করা যায় ততটাই ভালো। আমার নাম অরিন্দম দত্ত, নর্থ ইস্টার্ন রেলের প্লেয়ার। আমি 2000 সালে বম্বেতে আমি ন্যাশনালে চ্যাম্পিয়ন হই, তারপরে আমি সাউথ ইস্টার্ন রেলে জব পাই। আমি এখনও সাউথ ইস্টার্ন রেলেই আছি। একটু চাকরির জন্য কাজের প্রেশারে একটু কমে গেছে এখন। जी, हमारा जिम का नाम है एलीट फिटनेस। आज इस जिम का ओपनिंग हुआ है ऑफिशियली। हम लोग एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि मैंने कम बजट में रीजनेबल प्राइस में एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, यंग जनरेशन में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यंग जनरेशन को एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि एक अच्छा लाइफस्टाइल का तरफ आगे बढ़े। ठीक है, बहुत कोई थोड़ा सा मिसगाइड हो जाता है मैंने फिटनेस का रिगार्डिंग। बहुत सारा मिथ है कि जिम ये करने से होता, एक्चुअली सच्चाई ये है कि फिटनेस इज़ द बेस्ट लास्ट ऑप्शन है। इससे बड़ा नशा नहीं है दुनिया में। आप ये नशा करके देखिए। ठीक है, सुनने में कुछ भी लग सकता है लेकिन इससे अच्छा नशा नहीं है। यंग जनरेशन में देखा जा रहा है कि यंग जनरेशन में लोग अपने टाइम को मोबाइल में पबजी में दिया जाते हैं। देखिए, एक हाँ टाइम का रिगार्डिंग एक बात बोलना चाहेंगे कि टाइम एक्चुअली बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ होता है। ठीक है, सारा दिन में हम लोग को 24 घंटा निकलता है। अपना हेल्थ के लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालना कोई भी बिज़ी पर्सन के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही इजी होता है, मिनिमम आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा निकालना कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिज़ी से बिज़ी इंसान है, हर कोई आपका अपना लाइफ में बिज़ी है, करना पड़ेगा, काम करना ज़रूरी भी है। नहीं होगा तो फैमिली कैसे चलेगा। सिचुएशन के वजह से अभी इम्यून सिस्टम जो बहुत वीक हो गया है। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर लग्जरी लाइफस्टाइल, ऑनलाइन सामान मिलना, ऑनलाइन फूड मिलना, हम लोग घर बैठे सब कुछ हाँ बिल्कुल बताया जाएगा। हमारा सर्टिफाइड ट्रेनर है, वो गाइड करेंगे। ठीक है, वो अच्छा लेवल पे ट्रेनर है, हम है। और भी इस प्राइस पे कोई इतना अच्छा जिम है कि नहीं पता नहीं, और हाँ हाई रेट में हो सकता है, यही बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम मुबशिर कामरान खान है। आसनसोल के दिलदार नगर इलाके में रहने वाले ऑटो चालक सलीम खान के ऑटो से किसी ने महाशिवरात्रि की रात में बैटरी चुरा लिया। इतना ही नहीं, बैटरी चुराने के क्रम में अपराधी ने ऑटो की वायरिंग को काफी नुकसान भी पहुंचाया। आसनसोल टाइम्स के कैमरे के आगे सलीम खान ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि अपराधियों के इस कृत्य से उनको करीब 50,000 का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इलाके में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि वे इन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल कर देखें और अपराधी को पकड़कर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए प्रयास करें। सलीम खान बोल रहे हैं हम, और हम शिवरात्रि का रात में 9 बजे गाड़ी लगाए हैं यहाँ पर ही ऑटो। ठीक है, तो शिवरात्रि का रात में गाड़ी लगाएं, 5:30 बजे भोर में उठ के देख रहे हैं कि हमारा बैटरी कोई निकाल लिया काट उठ के, और हम गए थाना में रिपोर्ट करने के लिए तो उल्टा पुलिस लोग हमको बैठा लिया, 10 बजे रात में छोड़ा हमको बैठाने का बाद में। ठीक है, आपकी एफआईआर दर्ज हुआ आपका? नहीं, एफआईआर दर्ज भी नहीं किया, उल्टा हमको मुनीर बेग तक गया, हमको छोड़ा के लेके आया। कल मुनीर बेग मदन बाबू को ही फ़ोन करके बोला कि कैमरा चेक करने के लिए, मदन बाबू कुछ नहीं कर रहा, ना संतोना मुखर्जी कुछ कर रहा है। आपका ये जो नुकसान हुआ है कितने का नुकसान? कम से कम 50,000 का। तो ये चोरी जो किया है कैसे चोरी करी है? ये काटा है रात में आके आरी से, और इससे क्या बोले ब्लेड से। तो ये गाड़ी का यहीं पे खड़ी है? हाँ, गाड़ी यहीं पर खड़ी है। 3-4 कैमरा यहाँ लगा हुआ है। 3 दिन से पुलिस को बोल रहे हैं कैमरा चेक करिए सर, कैमरा चेक करिए, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। गाड़ी कितने? हमको प्रशासन से अपील है कि हमारा कुछ देखिए, हमारा जो दंड हुआ है, जो चोर को पकड़िए, हम यही बोलने चाह रहे हैं बस। गाड़ी कब लिया था? गाड़ी लिए 1 हफ्ता पहले लिए हैं, गाड़ी 1 हफ्ता पहले लिए हैं। और हम यहाँ पर पूरा मंदिर में पूरा लाइट लगा हुआ है, पूरा फोटो आएगा, 3-4 जगह सीसीटीवी फोटो लगा हुआ है यहाँ पर ही।
आप ऑटो चला के ही अपना हाँ, ऑटो चला के गुजारा करते हैं अपना। हाँ, 9 बजे कोई बिजनेस नहीं है। मेरा घर भी है देखिए बगले में है, दिलदार नगर में, ठीक है। और यहाँ पर ही चोरी जो की, प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमको चाहिए चोर से। उस CCTV फोटो में पुलिस को अपने पास में एकदम पूरा पुख्ता फोटो आ जाएगा। आप अपना नाम है फिर से बताइए। सलीम खान बोल रहे हैं हम। रानीगंज के पंजाबी मोड़ क्षेत्र के 7 नंबर इलाके में कल पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक और रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने TMC पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर रानीगंज की 88 नंबर वार्ड की TMC पार्षद नेहा साव विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके उपरांत यहां तकरीबन 300 से 350 गरीब जरूरतमंद महिलाओं के बीच साल वितरित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं और TMC कार्यकर्ता उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। द्वारा जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यक्रम, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्होंने बहुत सारे कार्य महिलाओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इलाका का तरक्की करना है, अगर समाज का आगे बढ़ाना है, तो पहले महिलाओं को आगे बढ़ाने होगा, महिलाओं को शिक्षित करने होगा और महिलाओं को स्वनिर्भर करने होगा। इसीलिए ममता बनर्जी ने कन्याश्री किया है और कन्याश्री के माध्यम से आज बहुत सारी लड़कियां वो पढ़ लिख कर आगे कोई कॉलेज में पढ़ रही है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। इसके साथ साथ आज ममता बनर्जी ने कई सारे प्रकल्प किए हैं, रूपश्री से लेके सामाजिक सुरक्षा से लेके स्वास्थ्य साथी कार्ड, ये सारे महिलाओं के नाम पर होता है। और स्वास्थ्य साथी कार्ड भी आप लोग जानते हैं कि महिला का जो हेड ऑफ द फैमिली है उनका नाम से होता है। और ये चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ, उनके बाद जो लक्ष्मी भंडार ममता बनर्जी ने किया, ये लक्ष्मी भंडार भी ममता बनर्जी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए किया है। क्योंकि इससे पहले हम लोग जानते थे कि जब लड़की का पढ़ाई, गरीब जो माँ बाप होता, कन्याश्री होने का बाद आज लड़की अपना पढ़ाई कर रही है और पढ़ लिख कर वो अपना कोई नौकरी कर रही है या बिजनेस कर रही है या फिर शादी कर, मर्द हो या औरत हो, पहला जो पढ़ाई हम लोग करते हैं स्कूल में जाने का पहले घर में जो पढ़ाई करते हैं वो अपना माँ से सीखते हैं। जो ABCD और को हम लोग को पढ़ाती है वो हमारा माँ पढ़ाती है। हम तो बहुत दिन से बोल रहे थे, 2-4 दिन प्रोग्राम होने का देरी हो गया, ठीक है, फिर भी आज ये काम हो रहा है, मैं इसका उसको बधाई देना चाहता हूँ। फिर भी आप लोग ममता बनर्जी के साथ जुड़ा रहिए। वो गरीब औरत के लिए काम करती है, गरीब इंसान के लिए काम करती है, गरीब इंसान के साथ चलती है, उसका बात बोलती है। वो कोई बड़ा घर से आए नहीं, वो एकदम गरीब से आप लोग के घर से उठ के पकड़ का चिप मिस्ता हुई है। उसका पीछे हमने देखा हमेशा बीजेपी पार्टी हमेशा उसका पीछे आदमी लगा देता है, कैसे उसको खत्म किया जाए। कल भी प्रेम का ऐसा किया है, जैसे प्रेम से उसका प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा नामत पर अगला बीजेपी पार्टी आ गया है तो उसको बड़ी सबक सिखाना है। अगला जो चुनाव आएगा उसमें वो पार्टी का सबक सिखाना है। जो भाषण देता है, राशन देने वाला ममता बनर्जी है, लक्ष्मी भंडार देने वाला ममता बनर्जी है, स्वास्थ्य साथी देने वाला ममता बनर्जी है, सबूत साथी देने वाला ममता बनर्जी है, कन्याश्री देने वाला ममता बनर्जी है, खाद्य साथी देने वाला ममता बनर्जी है। सिर्फ भाषण देने वाला मोदी जी और अमित शाह है। ये लोग को दूर कीजिए, ये लोग को छाया पर मत पड़ना मत दीजिए। यही बात के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने गई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वाराणसी में काले झंडे दिखाए गए थे और ममता बनर्जी को गो बैक के नारे लगाए गए थे। इसके खिलाफ कल रानीगंज के पंजाबी मोड़ में रानीगंज ब्लॉक टाउन महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। रानीगंज के पंजाबी मोड़ के 7 नंबर इलाके से एक रैली पंजाबी मोड़ तक आई और
और यहां टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं ने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। रानीगंज की 88 नंबर वार्ड केडीएमसी पार्षद नेहा साव के नेतृत्व में निकाली इस रैली के दौरान पायल साव, जया मालाकर सहित रानीगंज ब्लॉक टाउन टीएमसी महिला, तृणमूल कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट।